Hello. Welcome back to the program Spoken English. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya helping you to get a better understanding of English language and also enable you to communicate fluently, effectively, and with a great authority and command, guys. We also help you in the previous videos to improve grammar and vocabulary urgently required in various competitions and different levels of English proficiency tests. From today onward, guys, we start a new project basing on English communication skill and its fluency goal. So, introducing spoken English classes, let's see what is the difference between writing and speech. The first thing that we should know that writing and speech are a different thing. We write something and we cannot speak them. We cannot use them in speaking. Writing is for different purpose and not for spoken. It is to be read. So, spoken language is different language. In writing, though, once you write, it is a final. Because before you write, we have to think it out, what we have to write. But in spoken English, it is something different. There must be some repetitions. There must be some discontinuity, incompleteness. हम बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा रुक के, थोड़ा घट के, थोड़ा बढ़ के, ऐसे बोल रहे हैं. ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम बोले जा रहे हैं टेलीप्रिंटर, ऐसा कुछ नहीं है. स्पोकन इंग्लिश इज समथिंग that requires special attention and special course. It must not be taken and joined with what we call the written English. Spoken English is different, and I will tell you what the spoken English is. You will later know. Again, guys, we see language is for. So, language is for in mind when we write, but in spoken part there is a discontinuation, there is a fits and starts. We sometimes stop and then begin, then colon, semicolon, then little pause, longer pause. So many things are there that is not found in written English. Written English is well thought out. But spoken English is not well thought out, and even well thought out, we have our rhythm, our Indian rhythm, our regional rhythm, our local rhythm. So we have some accent and some way of telling. As Raja Rao says that we cannot speak like English people speak. We speak when we want to speak, and where our breath is tough, our comma is there. Where we longer take a stop, we give the semicolon and full stop like this. That language goes according to our these circumstances, outer and inner circumstances. So that's thing we'll discuss again. So and then the language that we speak has a register. What is register? Register is a language has a number of superposed varieties, and they are called registered. So language has a register. Register means that we cannot speak the same language. Means with the same content. Say different departments have different kind of vocabulary to use. For example, you go to court, you will find
the liars, advocates, they speak in different coins of words. Go to doctors, medical terms are used, medical vocabularies is used. And then also you go to business, there another, and you come to social media, different languages is speaking, different style is there. So there is a register. And then again, today for man the most important skill is communication skill. आज के ज़माने में अगर आपको नहीं यकीन होता है तो आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, जो आदमी बाज़ार में या बाहर या कहीं भी अपनी आवाज़ को उठा सकता है और उठाने के साथ वो अंग्रेज़ी में बोल सकता है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है उस पर उसका जो है एक सिक्का होगा। हिंदुस्तान ऐसे भी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, मेनी स्टेट्स आर देयर, different languages are there. Bengali is not like Hindi, Tamil is not like Malayalam, Malayalam is not like Uriya. So different languages are there, and then one language, one academic language that binds all the state is English. And again, ठीक है, हम अपने हिंदुस्तान में तो थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी से काम चला लें, लेकिन आज तो ग्लोबल ज़माना हो गया, ये विश्व का वैश्विक हो गया है। आज हमारे यहाँ जो सारी चीज़ें विदेश से आती हैं, खाने पीने से लेकर सारे सामान हम यूज़ करते हैं विदेश के। हमारे लोग विदेशों में व्यापार करते हैं और यहाँ से हम सब्ज़ी तक बेचने जाते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और दूसरे जगह हमारी। तो हर आदमी को एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है। विश्व स्तर पर बिजनेस करने के लिए हर आदमी को दूसरे आदमी की ज़रूरत है, और वो तब तक अब वो अच्छा सा बिजनेस नहीं कर सकता, तब तक वो ही विल नॉट फील एट होम अनलेस और अनटिल ही नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो यू कैन टॉक टू समवन इन इंग्लिश इफ़ दे आर टूरिस्ट, आप उनसे बात कर सकते हो। यू कैन आप अपना बिजनेस उनसे बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, और पढ़ाई भी आजकल बिना अंग्रेजी की कोई पढ़ाई नहीं होती। यू हैव डन MA, यू हैव डन PhD, बट इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू कन्वर्स विथ इन इंग्लिश, तो नो यूज़ ऑफ स्टडी, नो योर डिग्री इज़ फॉइल्ड, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों और अभिभावकों, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत इसके लिए इच्छुक हूँ और आपको बहुत ये कर, मैं ये स्वार्थ रहित पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट मच इंटरेस्ट, सॉरी मच माई ओन इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो मैंने 350 वीडियो बनाए। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप मेरे वीडियो को जो है वो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ऐसा बहुत बहुत ही रेयर कहा होगा, जैसा कि लोग हर वीडियो में कहते हैं। मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने विद्यार्थियों का या जो सीखना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, उनके काम एंड विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। अंग्रेज़ी में जब सारे आप सरल चीज़ें सीखिएगा, जो कठिन चीज़ें हैं वो कौन सीखेगा। तो जो इंटरनेट पर आप देख रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं और अट्रैक्टिव पढ़ा रहे हैं, उनमें आप विश्वास नहीं करो, क्योंकि कोई भी चीज़ उतना इजी नहीं होता जितना आप समझते। जो चीज़ इजी आपको लगे वो समझिए आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। जब तक कि देयर इज़ ए सर्टेन लेबर अटैच विथ अस, सर्टेन एफर्ट अटैच विथ अस, कोई काम जो है आपको वो सूट नहीं करेगा। तो गाइज, ये बी रेडी दैट आई एम गोइंग टू टीच यू स्पोकन इंग्लिश। और ये मैं पहले भी कर सकता था,
ये 300-350 वीडियो बनाने के पहले भी कर सकता था, लेकिन नहीं, ये क्रम से मैं कर रहा हूँ। आप मेरे ग्रामर को पढ़िए, समझिए, थोड़ा ज्ञान नॉलेज हो जाए तो फिर आप आइए और देखिए कि ये बिल्कुल डिफरेंट है और आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। मेरे क्लास में आप 50 वीडियो बनाते बनाते अगर आप पूरा ये 50 वीडियो आप रोज़ देखते जाते हो तो आप निश्चित रूप से न सिर्फ आप बहुत बेहतरीन बोलोगे बल्कि आप अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करना शुरू कर दोगे। तो गाइस, विद दिस विद दिस इंटेंशन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम 2 पार्ट में बताएंगे। एक तो बताएंगे कि मैनर कैसे बोला जाता है, कोई शब्द कोई सेंटेंस उसको हम लिख करके बोल करके बताएंगे कैसे बोला जाता है, और दूसरा चीज़ बताएंगे कंटेंट मतलब वो कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे लिख करके। जैसे सब्जी लाना हुआ या किताब या राजनीति अभी चल रही, पॉलिटिक्स है, आपको पॉलिटिशियन है, बोलना हुआ कैसे आप बोलेंगे मंच पर, कैसे हाउ टू स्पीक, हाउ टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन स्टेज। तो हम आपको कंटेंट में बताएंगे कैसे लेक्चर दिया जाता है, कैसे क्लास में बोला जाता है, कैसे जो है वो मीटिंग में बोला जाता है, कैसे आपस में बात करते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न इन कमिंग वीडियोज़। आज हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मैं अपने आदत के अनुसार, आप जानते हैं मैं कभी भी बिट्टा या बिट्टे नहीं करता, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। रोज़ आपके पास एक वीडियो रोज़ पहुँचेगा और आप उसको एंजॉय कीजिएगा। और 50 वीडियो, एटलीस्ट 50 वीडियोज़ आई विल मेक ऑन स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब से मैं कहूँगा कि आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और जो है शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।